بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتی ہیں کال، چلتے ہیں پیکیجز، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے۔ پیارے بچوں آئے سیگمنٹس شروع کرنے سے پہلے اپنے پروگرام بچوں کی شام میں درود شریف پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتائیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار کس شہر میں ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए. अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की बादब हाजिरी नसीब फरमाए. प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ. बताइए, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ किस शहर में है? हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार किस शहर में है? अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम. बच्चों की शाम, बच्चों की शाम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी. मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी. हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी. हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने गली अच्छी लगी. दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी. दूर थे
کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میرا آج کا جو سوال تھا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں؟ پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام بچوں کی شام میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مسنت ہے، میں میٹھو خاص سے بول رہا ہوں۔ سن کو سازم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے نعرہ لگایا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام یاور احمد ہے، میں میٹھو خاص سے بول رہی ہوں۔ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، 3 چھاٹ میں پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، دیکھ کے پینا چاہیے، 3 چھاٹ میں پانی پینا چاہیے، آخری میں الحمدللہ بولنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کری۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مدینہ منورہ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا، ضرور جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں فاطمہ اتاریہ، ملتے نمبر سے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی مدینہ شریف میں۔ جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا، ضرور جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے، آج کا جو واقعہ ہم سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا، تو آپ نے آخر تک کہیں نہیں جانا، سیگمنٹ پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہوگی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔
پیارے بچوں واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیارے بچوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ پیارے بچوں واقعہ کس کا ہے؟ ابی بن کعب، کس کا؟ ابی بن کعب وہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار جب وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟ جی کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اب آپ بتا دیجئے کہ کتنا حصہ یعنی ٹائم پیریڈ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر یعنی فکس کروں؟ انہوں نے پھر آگے کیا کہا؟ آپ بتا دیجیے کہ کتنا ٹائم پیریڈ میں درود شریف پڑھنے کے لیے فکس کروں؟ فکس کر دوں یعنی مقرر کر دوں۔ تو پیارے بچوں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو مقرر کر لو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا چوتھائی حصہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کتنا حصہ؟ چوتھائی حصہ۔ چوتھائی حصہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو مقرر کر لو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ اگر تم چوتھائی حصے سے زیادہ حصہ مقرر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ چوتھائی سے زیادہ مقرر کر لو تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ بہتر ہی ہوگا۔ پھر دوبارہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا آدھا حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں۔ کتنا آدھا؟ آدھا حصہ۔ کتنا حصہ؟ آدھا حصہ۔ آدھا حصہ۔ پھر آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو مقرر کر لو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم اس سے زیادہ ٹائم مقرر کر لو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا 2/3 مقرر کر لوں۔ کتنا حصہ؟ 2/3۔ جی 2/3 مقرر کر لوں۔ 2/3 مقرر کر لوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو مقرر کر لو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ مقرر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اس سے زیادہ تم مقرر کر لو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ 3 بار انہوں نے ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا کہا؟ جتنا چاہو مقرر کر لو۔ اگر اس سے زیادہ مقرر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ بہتر ہی ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بار عرض کی، میں اپنے اوراد و وظائف کا پورا حصہ درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میں اپنے اوراد و وظائف کا پورا حصہ درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ جی تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو درود پاک تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا پورا حصہ درود پاک پڑھتا رہوں گا، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ چلے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر ایسا کرو گے تو درود پاک تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کس کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تمام غموں اور فکروں کو دور کرنے تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ کس کے لیے کفارہ ہو جائے گا؟ گناہوں کے لیے۔ تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ کس میں فائدہ ہوگا؟ دنیا اور آخرت۔ دنیا اور آخرت میں کس طرح فائدہ ہوگا؟
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का, और हमारी बहुत सारी मुश्किलें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से दूर हो जाएंगी। क्या दूर होंगी? मुश्किलें दूर कैसे होंगी? ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से। जी, ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट एक वाक़या। इससे हासिल होने वाला, इससे एक ख़ास नेकी मालूम हुई। वो नेकी कौन बताएगा कि वो नेकी क्या मालूम हुई? चलें आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। इससे क्या होगा? आसान में हमारी सारी मुश्किलें और गम दूर हो जाएंगे। हमारी सारी फिक्रें, गमें और मुश्किलें दूर हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, संवर जाएगी। ये वाक़या किस सहाबी का था? जी, चलें आप बताएं। उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब। चलें, और कोई बताएगा? चलें आप बताएं। हज़रत उबई बिन काब। हज़रत उबई बिन काब। चलें आप बताएं। हज़रत उबई बिन काब। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हसन भाई। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, ये वाक़या था हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अच्छा, ये सारा वाक़या किस चीज़ की वजह से आप हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके पास तशरीफ़ लाए थे? जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे। पहली बार आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या इरशाद फरमाया था? कि मैं अपने औराद वज़ाइफ का चौथाई हिस्सा दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट एक वाक़या। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम यासीन है, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 22 में है। क्या नाम है बच्चों? सूरह यासीन। यासीन नाम रखने की वजह, इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ यासीन है, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह यासीन रखा गया। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया, आइए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में अल्लाह पाक को वाहिद यानी एक मानने को और क़यामत में मुर्दों को ज़िंदा किए जाने को बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की कसम ज़िक्र करके फरमाया कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों को पालने वाले रब के सच्चे रसूल हैं। बेशक। नंबर 3, इस सूरत में एक बस्ती अंताकिया के लोगों की मिसाल बयान की गई है कि वो अल्लाह पाक के रसूलों पर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह पाक ने उन्हें सज़ा दी। नंबर 4, इस सूरत में काफिरों को पिछली उम्मतों को मिलने वाली सज़ाओं के बारे में बताकर इस बात से डराया गया है कि अगर उन्होंने उनकी तरह हरकतें ना छोड़ी तो इनको भी अल्लाह पाक सज़ा दे सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सुना उसे याद रखने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस सूरत में काफिरों को पिछली उम्मतों को मिलने वाली सज़ाओं के बारे में बताकर इस बात से डराया गया है कि अगर उन्होंने उनकी तरह हरकतें ना छोड़ी तो उनको भी अल्लाह पाक उनकी तरह की हरकतें ना छोड़ी तो उनको भी अल्लाह पाक सज़ा दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सेगमेंट कुरानी सूरत में किस सूरत के बारे में जाना? इन्हें आप बताएं। माइक। यासीन। सूरह यासीन। और कोई बताएगा? चले इनको माइक दो। सूरह यासीन। सूरह यासीन। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताएं कि ये सूरह यासीन कौन से पारे में, कौन से पारे से शुरू होती है? चले इनको माइक दो।
22वें पारे से। 22वें पारे से। चले इनको मैं जी आप बताएं। 22वें पारे से। जी 22वें पारे से। अच्छा यासीन नाम रखने की वजह आपको पता है? जी चले आप बताएं। इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ मौजूद है, इसकी वजह से इसका नाम सूरह यासीन रखा गया। जी आप बताएं। इस सूरत में पहला लफ्ज़ यासीन है, इस मुनासिबत से इस सूरत को सूरह यासीन। इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ यासीन गया है, इस वजह से इस सूरत का क्या नाम रखा है? सूरह यासीन। सूरह यासीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी जाए के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट कुरानी सूरतें। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है आमना तारे। आज के सवाल का जवाब है मदीना शरीफ। जी जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, मैं पापा मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आज का सवाल बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब मदीनतुल मुनव्वरा है। किड्स मदी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी, मदीना शरीफ में है। जी जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद खिजर काशिफ है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मदीना शरीफ में। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दोनों जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स बननी चाहिए के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानिक वोकैबुलरी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कुरानिक वोकैबुलरी यानी आय अरबी सीखे में, जिसमें हम आपको कुछ ना कुछ अरबी अल्फाज सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले प्रोग्राम्स की तरह आज भी हम आपको 3 अरबी के वर्ड सिखाएंगे और वो तीनों भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे 3 वर्ड हैं उनमें से पहला है सीना। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरुन। पहला है सीना और दूसरा है हाथ। तो हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदुन। जी। और तीसरा वर्ड है कोनी। कोनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरफकुन। जी। आए प्यारे बच्चों, हम इन्हें याद कर लेते हैं। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरुन। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरुन। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरुन। और हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदुन। हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदुन। क्या कहते हैं? यदुन। और सीने को अरबी में क्या कहते हैं? सदरुन। जी। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदरुन। और हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदुन। और तीसरा वर्ड है कोहनी। कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरफकुन। कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरफकुन।
कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, कौन बताएगा सीने को अरबी में क्या कहते हैं? जी आप बताएं। जी सदरुन। जी, सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। और हाथ को अरबी में? यादुरुन। जी, हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? यदुन। और तीसरा वर्ड है कोहनी, तो कौन बताएगा कोहनी को क्या कहते हैं? समझे आप? मिरफकुन। जी हाँ, कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब तीनों वर्ड एक साथ कौन सुनाएगा? चले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और हाथ को अरबी में मिरफकुन के हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? जी। और कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी, याद हो गया सबको? अब दोनों को याद हो गया? जी जी चले आप बताएं, कोहनी को अरबी में क्या कहते हैं? सदरुन। नहीं, और कोई बताएगा? भाई आइए दोबारा याद कर लेते हैं, एक बार याद नहीं हो रहा, थोड़ा मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी। और हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? जी। और कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी। कोई सुनाएगा आप? लब्बैक। लब्बैक। इनको दे माइक। सीने को अरबी में क्या कहते हैं? सदरुन। जी। और हाथ को? यदरुन। हाथ को यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? यदुन। और कोहनी को? मरफकुन। मिरफकुन कहते हैं, क्या कहते हैं? जी। और कोई सुनाएगा? इनको दे माइक। कोने वाले? मरफकुन। हाथ को क्या कहते हैं? सदरुन। हाथ को? सदरुन। नहीं, अनसुई आप बताएंगे? चले एक लास्ट मरतबा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और हाथ को अरबी में यदुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और तीसरा है कोहनी, कोहनी को अरबी में मिरफकुन कहते हैं। जी। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे 3 वर्ड्स। तो कोई तीनों एक साथ सुनाएगा? जी। आप सुनाए। कोहनी को अरबी में सदरुन। सीने को क्या कहते हैं? सीने को सदरुन। और हाथ को? यदुन। और कोहनी को? मिरफकुन। जी माशाल्लाह। और कोई कोने वाले भाई? जी। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं। जी। और हाथ को? यदुन। जी। और कोहनी को? मिरफकुन। आज हमने अपने सेगमेंट अरबी सीखे में कितने वर्ड सीखे? 3। आप इसको खुद भी याद करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आप अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें और अपने दोस्तों की भी नॉलेज में इजाफा करें। आज वो जो 3 वर्ड है वो है सीना, हाथ और कोहनी। सीने को अरबी में सदरुन कहते हैं, हाथ को यदुन और कोहनी को मिरफकुन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट अरबी सीखें। इसमें हमने अरबी के आज 3 अल्फाज सीखे जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें।
तो आज हम फरवरी 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से फरिश्तों के बारे में इस्लामी अकीदा सुनेंगे। प्यारे बच्चों, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से छुपा कर रखा है और इन्हें ऐसी ताकत दी है कि जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। बच्चों, फरिश्ते अल्लाह पाक की मर्ज़ी के खिलाफ अगेंस्ट कुछ नहीं करते और ये गुनाहों से पाक होते हैं। और हाँ बच्चों, किसी भी फरिश्ते की छोटी सी बेअदबी करने वाला मुसलमान नहीं रहता और जो फरिश्तों के होने का ही इनकार करे या ये कहे कि फरिश्ते नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं, ऐसा कहने वाला भी मुसलमान नहीं रहता। प्यारे बच्चों, फरिश्तों की तादाद अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, जिसने इन्हें पैदा किया और उसके बताए से उसका रसूल जानता है। 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये सब फरिश्तों पर फजीलत रखना है। बच्चों, अल्लाह पाक ने फरिश्तों के ज़िम्मे अलग अलग काम लगाए हैं, जिनमें से कुछ काम ये हैं: अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास वही लाना, बारिश बरसाना, हवाएं चलाना, मखलूक तक रोज़ी पहुँचाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमानों का दुरूद और सलाम पहुँचाना, मुर्दों से सवाल करना और रूह कब्ज़ करना, गुनाहगारों को सज़ा देना, सूर फूंकना और इनके अलावा और बहुत से काम हैं जो फरिश्ते करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है हमें दीन इस्लाम पर साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी जाए के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज़ टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी जाए के नाज़रीन, आज का सेगमेंट जिसका नाम है क्विज़ टाइम है। तो मेरा पहला सवाल है, बताइए लफ्ज़ यूनुस में कितने हुर्फ हैं? जी आप बताएं। 4। आप बताएं। 4। जी आपने कहा 4 और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमें किस हाथ से लेना और देना चाहिए? चलिए आप बताएं। सीधा हाथ से। जी आपने कहा सीधे हाथ से और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, कौन सी नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? चले आप बताएं। ईशा। ईशा की नमाज में और ईशा की वितर की नमाज में। और ये बताइए कि नाश्ता किस वक्त के खाने को कहते हैं? चले इनको बताएं। सुबह के खाने को नाश्ता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी जाए के नाज़रीन, जो मैंने आज का सवाल पूछा था हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मदार किस शहर में, तो आपने जवाब दिया मदीना मुनव्वरा में। जिन्होंने कहा उन सब का जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।